Hello students, myself Bafna ma'am. Today we will be taking Limited Liability Partnership Act 2008. What is this Limited Liability Partnership Act? See, companies and partnership registered under Companies Act 1956, 2013 and Partnership Act 1932 respectively are two popular forms of business organization in India. We have seen Companies and Partnership Act. These were registered under Companies Act and Partnership Act. These are the popular forms of business organization in India. As it has been discussed earlier, partnership form of business organizations provide flexibility of operation. See, there is a flexibility of operation in the partnership form of act, but it has a disadvantages of limited liability and agency relationship between the partners. As we know, partnership firm does not have a separate legal status like a company. So we have already seen that is a business in partnership form of business organization. It provides a flexibility and has a disadvantages of limited liability. In partnership firm, one of the main disadvantages is it has a unlimited liability. People go in the partnership firm to do some sort of business. एक बिजनेस करने के लिए जाते हैं, लेकिन बिजनेस करते 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 उस चीज़ में इतने डूब जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि बिजनेस पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन उसमें इतना डेट्स वो ओव करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि बिजनेस करते करते उनका दिमाग है ना अनलिमिटेड लायबिलिटी की तरफ जाता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जो डेट्स उन्होंने ओव किया है बाहर, तो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उनको डेट्स वो देना पड़ता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी ऐसा नहीं है। As we know, the partnership firm does not have a separate legal status like a company. Partnership firm आपको मालूम ही है कि वो separate legal status उसका नहीं है. Moreover, partners are personally liable for the debts of the firm. Okay? In addition to this, each partner is an agent of a partnership firm as well as other partner. So, एक पार्टनर एजेंट है, दूसरे पार्टनर एज वेल एज द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर ऑल्सो, तो एक दूसरा पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है. तो अनदर लिमिटेशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज दैट इट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ विच गेट डिस्कस्ड इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर. ओके, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, अभी ये पार्टनरशिप का हुआ था, तो वो डिसएडवांटेज क्या है इसमें? अनलिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप में. बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है? देयर इज ए लिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप एक्ट. ये नया कंसेप्ट है. सो वी विल सी व्हाट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. See, one of the greatest advantage of company form of business organization is limited liability. Companies Act insists on various statutory compliances and procedural formalities. Companies Act also contain various restrictions relating to loan, investment, managerial remuneration, etc., due to which administration of its officers becomes costly, cumbersome and rigid. सो अभी ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है. जब कंपनी खोलते हो बिजनेस करने के लिए, देयर इज ए लिमिटेड लायबिलिटी. इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है. बट यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक दूसरा एक्ट है, एक नया एक्ट है जो 2008 में बनाया गया है. तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट. एक हाइब्रिड है. उन्होंने जिसने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में निकाला है, उसने डिसएडवांटेज पार्टनरशिप का जो था उसको कमी करने के लिए और जो कंपनीज एक्ट में जो एडवांटेजेस था उसको निकाल कर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. ओके, हियर what does it tell? Limited liability partnership act is a hybrid of partnership act and companies act. The new concept of LLP has been formulated by eliminating defects of traditional partnership act form
and rigid procedural company compliances of Companies Act. It contains advantages of both partnership and companies. यहाँ पे जो advantages है पार्टनरशिप एक्ट के एंड जो एडवांटेजेस है कंपनीज एक्ट के, उन दोनों को निकाल के एक लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट बनाया है. ओके, अंडरस्टूड. सो जो एडवांटेजेस है उसको निकाला है, और जो डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप एक्ट में उसको निकाला है, और जो एडवांटेजेस है कंपनीज एक्ट में निकाल के एक लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट को बनाया है, एक नया एक्ट को बनाया है. Okay, the Lok Sabha passed the Limited Liability Partnership Bill on 13th December 2008. We will see here. So, ये 2008 and received the assent of the President on 7th January 2009, and accordingly Limited Liability Partnership Act 2008 came into legal existence. Most of the provision of this act came into effect from 31/3/2009, and the rules made therein have been put into effect from 1/4/2009. Okay. Now, what is the concept? Concept दिखते हैं. The concept of LLP has emerged out of Naresh Chandra Committee report on regulation of private committees and partnership, and Dr. J.J. Irani Committee report of company law. In India, business are mainly conducted through companies, sole proprietorship and partnership act. ये जो concept है LLP का, जो एक नरेश चंद्र कमिटी उनकी रिपोर्ट है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड पार्टनरशिप, और अभी एक जो है डॉक्टर जे ईरानी कमिटी रिपोर्ट है ऑफ कंपनी लॉ. इन लोगों ने क्या किया, इनकी कमिटी ने एक रिपोर्ट बनाई इंडिया में. उन्होंने कहा बिजनेस आर मेनली कंडक्टेड थ्रू कंपनीज. ओके, सी हियर, ये जो दो बंदे हैं, जो नरेश चंद्र उनकी कमेटी और ईरानी डॉक्टर जे ईरानी, इनकी जो कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट बनाई रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप, और अभी एक कंपनी लॉ जो इंडिया के है. तो उन्होंने कहा कि बिजनेस आर मेनली कंडक्टेड थ्रू कंपनीज, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. So, LLP is considered as an alternative corporate body entity that provides the benefit of limited liability and at the same time permits its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived agreement. Okay? यहाँ पे it is based on mutually arrived agreement. So, through the LLP form of business organization, it is possible for entrepreneurs, professional and enterprises providing services of any kind or engaged in scientific and technical discipline to form a commercially efficient business organization suited to their requirement. It will provide a platform to small and medium-sized enterprises and professional firms of a company's secretaries, chartered accountants, advocates, etc. to conduct their business professional more efficiently so as to remain globally competitive. यहाँ पे ये क्या कहा है, तो LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी है. तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी जो प्रोफेशनल फर्म्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, जो बिजनेस प्रोफेशनल्स है, दे कैन कंडक्ट more efficiently, their business can be conducted more efficiently as to remain globally competitive. So इसलिए ये नया कंसेप्ट निकाला है. So there will be a limited liability. तो इन लोगों का जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी फर्म में एक कंपनीज एक्ट की तरह एक लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है. सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज एक्ट. अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, पर्सनल डेट्स को भी पर्सनल जो प्रॉपर्टी बेचकर भी आगे वालों का डेट्स पूरा करना पड़ता है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी ऐसा नहीं है. सो देर इज ए
यहाँ पे टोटली बोला गया है देर इज़ ए लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है, इट इज़ ए टोटल लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में जो है, कंपनी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी भी है, टोटली सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम देयर मेंबर्स। Okay, the main positive point here is company and LLP limited liability ना। सो मेन रीज़न है यहाँ पे, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी और LLP का है। सो वी विल यूज दिस लिमिटेड लाइबिलिटी एज ए LLP। ओके, फर्दर वी विल सी व्हाट इज दैट। See, under the traditional form of partnership, due to the principle of unlimited liability, the personal property of the partners can also be affected। See, यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये टोटल ओल्ड कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल फॉर्म। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ अनलाइबिलिटी, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, प्रिंसिपल क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो उनका जो कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी अफेक्टेड हो जाता फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेट्स। ओके, तो डेट्स जो कोई भी है, जो कोई भी बंदा जिसी ने उधारी की है, अगर वो उधार नहीं दे पाया है तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस वो भी बेचकर उसको देना पड़ता था सामने वालों को। दैट इज कॉल्ड एज ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन एडिशन टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन द फर्म, जो पार्टनर्स जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके अलावा उसकी पर्सनल लायबिलिटी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भी अफेक्ट होती है। द सिस्टम हैज़ बीन फाउंड टू बी डिटरेंट फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। तो ये एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था उसमें, तो द सिस्टम फाउंड टू बी ए डिटरेंट फॉर द ग्रोथ। ये जो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी बिजनेस में, एंड एक्सपेंशन ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेचर ऑफ LLP। LLP का नेचर क्या है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नेचर क्या है। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this LLP Act. This is also a body corporate and it is also been incorporated under the LLP Act and is a legal entity. It is a legal entity. मैंने बोला था ना, ये टोटल सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेम एज ए कंपनीज एक्ट। लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, it is a separate from its partner है, and it will have a perpetual succession same as a company law. Okay, you would have studied perpetual succession. So any change in the partnership of LLP does not affect, if there is any change in LLP's act, that will not affect the existence of rights or liabilities of such partnership act. Okay, partnership. So any change in the partners of LLP, अगर देर इज एनी चेंज, अगर कुछ पार्टनर में चेंजेस हुआ है तो उनका जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है दैट विल नॉट अफेक्ट। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज है द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर नॉट एप्लीकेबल टू द LLP। सी, पार्टनरशिप एक्ट के जो पीछे हम लोगों ने जो वीडियो बनाए थे, जो क्लास की है पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये कुछ नया ही चैप्टर है LLP, दिस विल नॉट अफेक्ट द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, और ये एक्ट दूसरा ही है। ये एक्ट पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है LLP में। ओके, सो पार्टनर्स, any individual or body corporate may be a partner. Any individual or body corporate may be a partner in LLP. However, following individuals are not capable of being a partner of LLP. Now, who are not capable of being a partner? Person of unsound mind, an undischarged insolvent, जो insolvent है, or one who has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending, और जिसने insolvent application डाला हुआ है वो, और उसका application pending है कोर्ट में,
तो he cannot become a partner of LLP. Okay, now we will see here next. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने मिनिमम नंबर्स चाहिए? एवरी LLP shall have at least two partners. Okay, if any time during the continuance of LLP this number is reduced to 1, अगर LLP बिजनेस कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक आध बंदा रिडक्शन हो गया and the remaining partner continues business of LLP for more than 6 months with the knowledge of this fact, he personally become liable for the obligation of LLP incurred during that period. अगर उसमें से एक पार्टनर निकल गया तो एक पार्टनर मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा वो बिजनेस कर रहा है तो ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर वॉट एवर द एक्ट्स इज बिन क्रिएटेड द ऑब्लिगेशन LLP इनकर ड्यूरिंग दैट पीरियड, ही विल बी पर्सनली लायबल. वन पर्सनल वन बी, जो एक ही इंसान है, पार्टनर है, ही 6 मंथ से भी ज़्यादा, तो ही विल बी पर्सनली लायबल. ओके, डेजिग्नेटेड पार्टनर. Now, what is designated partner? Every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them has to be a resident in India. Now, what do you mean by designated partner? जैसे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स होते हैं तो उसी प्रकार LLP में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं. उसको सेम एज ए कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं. तो एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर. शिट यार, तो LLP में क्या होगा? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शुड बी देयर. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. ओके, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them has to be a resident in India. उसमें से एक तो resident of India होना चाहिए. Okay, however in case of a LLP, in a case of LLP in which all the partners are bodies corporate or in which one or more partners are individuals and body corporate, okay, at least 2 individuals who are partner of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as designated partner. So however in a case of LLP all partners are body corporate, जो भी जितने भी पार्टनर्स है सब बॉडी कॉर्पोरेट है. इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate shall act as a designated partners. So at least क्या है, at least 2 individuals will act as a designated partners. Okay, now we will see 7th point. What is this? Liability. No partner is liable to the independent and unauthorized action of other partner. यहाँ पे क्या है? नो पार्टनर इज लायबल टू द इंडिपेंडेंट. कोई भी पार्टनर लायबल नहीं है इंडिपेंडेंट एंड अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर. अगर जो कोई भी दूसरा पार्टनर है वो इंडिपेंडेंट है, अनऑथोराइज्ड एक्शन ले रहा है, तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं है एंड हेंस एवरी सिंगल पार्टनर इज ए शील्डेड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट. तो लायबिलिटी क्या है? आपने देखा है ना यहाँ पे, नो पार्टनर इज लायबल टू द इंडिपेंडेंट एंड अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर. ओके, सो 8th पॉइंट हियर इज राइट्स एंड ड्यूटीज.
All mutual rights and duties of partner within the LLP are governed by the agreement between the partner called as a LLP agreement. So जो भी rights and duties है तो वो partners के LLP are जो within the LLP are governed by agreement, जो उनका agreement है वो govern किया जाएगा between the partners. Okay. Now we have considered what is the nature of LLP. नेचर ऑफ LLP मालूम हो गया ना. इट इज़ अ टोटल सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कंपनीज एक्ट में है, बॉडी कॉर्पोरेट है. इन कॉर्पोरेशन होने के बाद वो एक्ट LLP फर्म क्या हो जाती है, लीगल, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. उसका राइट एंड लाइबिलिटीज अलग है. it does not affect the existence of the right and liabilities. Okay, the provision of Partnership Act 1932 are not applicable. So who can enter into a LLP? See, few people are not capable of becoming a partners. जो है unsound mind, insolvent है, जिसका केस पेंडिंग है insolvent का, and who can become the LLP partners? At least 2 partners are required. ओके, उसमें से जितने पार्टनर्स है उसमें से एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. लायबिलिटी है, नो पार्टनर इज लायबल टू द इंडिपेंडेंट एंड अथॉराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, तो उसकी भी लायबिलिटी है. हेंस एवरी सिंगल पार्टनर इज शील्डेड from the joint liability created by another partner. Okay, the rights and duties क्या है, mutual rights and duties of the partners are governed by the agreement. जो उनके agreement हुआ है वो govern किया जाएगा. तो nature ये है. Now we will see what are the advantages of LLP. See, LLP is a new form of business organization having the following advantages. उसके advantages है ऐसे. अभी advantages क्या है? फर्स्ट में, it provides flexibility without insisting too much on legal and procedural compliances. It provides flexibility. Okay, main point है flexibility देता है ये business form. Its working is based on agreement and is properly organized. तो ये जो है working है उसका एकदम properly it is organized and agreement के ऊपर based है ये. It enables a professional technical expertise and initiative to combine with financial risk-taking capacity in an innovative and efficient manner for effective competing in global world. See, it enables professional technical expertise. जो professional technical expertise कौन से होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर फर्म होता है, जो वो फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन एन इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर, जो एक नया है एफिशिएंट मैनर पे वो एक फाइनेंशियल रिस्क उठा रहे हैं. सो ग्लोबल जो फॉर इफेक्टिवली कंपीटिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है LLP. हाँ, ओके. The fourth point is LLP structure would enable small and medium enterprises and family partnership to expand as they will be able to admit outsiders with capital or skill as a partner. See, यहाँ पे LLP structure it will enable small and medium expertise and family partnership to expand as they will be able to admit outsider with capital or skill as a partner. तो एक एक्सपैंड कर सकते हैं. स्मॉल और मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेस है, फैमिली पार्टनरशिप है, वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. एक्सपैंड करके बाहर के जो आउटसाइडर्स जो पार्टनर है उनको एडमिट करके उनका जो कैपिटल जो स्किल्स है उसमें इन्वेस्ट करके LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक ही मेन है कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मेन एडवांटेज है. सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस फर्म दे कैन गिव द आउटसाइडर एन एंट्री, दे कैन एडमिट द आउटसाइडर तो इनटू LLP फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप. तो वो एक एंट्री दे सकते हैं बाहर के लोगों को कि भाई लायबिलिटी लिमिटेड है यहाँ पे, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है यहाँ पे बिजनेस कंडक्ट करते समय. ओके, सो दिस आर द मेन एडवांटेजेस इन LLP.
नो व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी एक्ट? नो फीचर्स क्या है इसके? लीगल एंटिटी के फीचर्स है, यहाँ पे है एलएलपी के फीचर्स है लीगल एंटिटी, मेन है फेन लीगल एंटिटी। द एलएलपी शेल बी बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, समझा, और लीगल सेपरेट एंटिटी है, यानी ये एलएलपी का बिजनेस फर्म है और इन लोगों ने तैयार किया है, तो ये लोग डिफरेंट है और एंटिटी डिफरेंट है, उनका अस्तित्व अभी डिफरेंट है। लीगल सेपरेट एंटिटी यानी अस्तित्व, ये फर्म अलग है और ये जो बंदों ने जिन्होंने किया है ये अलग है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी। राइट्स एंड ड्यूटीज, mutual rights and duties of partner inter se and those of the LLP and its partners are governed by agreement amongst them. Okay, rights and duties क्या है? mutual है यहाँ पे, and it is governed by agreement. Okay, amongst them, जो जो agreement किया है उसके हिसाब से उनकी rights and duties होगी। अभी इनकी liabilities क्या है? The LLP being a separate legal entity is liable to full extent of its assets with the liability of partners being limited to their agreed contribution in the LLP. अभी ये separate legal entity तो है ही है, separate legal entity है, उनका अस्तित्व अभी जो LLP है उसका अस्तित्व separate है, and is liable full extent of his assets, जितना उसका asset है उतनी ही liability रहेगी, and जितने partners हैं जिन्हें जितने जितने उन्होंने contribute किया है उतना ही उसकी लायबिलिटी होगी। नो पार्टनर वुड बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ ए इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर एंड देयर मिसकंडक्ट। अभी इतने सारे पार्टनर्स हैं, किसी एक ने मान लीजिए अनऑथोराइज्ड एक्शन किया है या मिसकंडक्ट किया है, तो ही विल बी हेल्ड लायबल, नॉट एनी अदर पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल। ओके, so this is the liability. The number of partners. In the case of LLB, there will be at least 2 partners. Salient features क्या है? At least 2 partners will be there. And at least 2 individual are designated partners. मैंने बोला था ना, designated partners are equal to डायरेक्टर्स। जैसे डायरेक्टर्स कंपनी में होते हैं उसी प्रकार एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं और एक पार्टनर जो इंडिया का रहेगा। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स एटलीस्ट 2 पार्टनर्स शुड बी देयर। ओके, इन केस ऑफ एलएलपी there must be at least 2 partners and at least 2 individuals as designated partners. At least 2 individuals should be there as a designated partners, and of whom at least one shall be resident of India. Okay, now next, accounts of LLP. The LLP is under obligation to maintain annual accounts reflecting the true and fair view of its states of affairs. It is mandatory for every LLP to file statement of accounts and solvency with the registrar every year. The accounts of LLP are required to be audited, subject to class LLPs being exempted from this requirement by central government. Now, accounts के बारे में क्या LLP में क्या बोला है? It is under obligation to maintain annual accounts reflecting the true and fair view of the state of affairs. यानी आपका obligation बनता है कि you have to maintain annual accounts, but annual true and fair view दिखाना पड़ेगा to okay, so it is mandatory for every LLP to file a statement of accounts and solvency with registrar every year. तो आपको रजिस्ट्रार में आपका स्टेटमेंट अकाउंट्स के बारे में कि आप सॉल्वेंट है, आपकी सॉल्वेंसी बारे में दिखाना ही पड़ेगा रजिस्ट्रार। एवरी ईयर रजिस्ट्रार को दिखाना पड़ेगा। सो इट शुड बी ऑडिटेड। सो यहाँ पे जो एग्जम्पशंस है जो एग्जम्पशंस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रार दिखाने के बाद वो हो सकता है। ओके
नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द LLP if required by appointing competent inspectors for the said purpose. से the competent inspectors जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया गया, अपॉइंट किया गया है, तो उनके पास पावर होता है कि वो मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करे LLP. तो उनके पास पूरा पावर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. ओके अभी मर्जर है, अमालगमेशन है. द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ LLPs could be done as per the provisions of the act. As per the provisions of the act आप उसको मर्ज कर सकते हैं कंपनी को. It is required, provisions of the acts are required. Now what is that next point is conversion. Now conversion में क्या है? A private company, a firm or an unlisted public company could be converted into LLP. एक जो प्राइवेट कंपनी है, ये फर्म है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कुड बी कन्वर्टेड. ये जो प्राइवेट कंपनी है, जो कोई भी फर्म है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, दे कैन कन्वर्ट, वो कन्वर्ट कर सकते हैं LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. दे कैन कन्वर्ट. नो नेक्स्ट क्या है? वाइंडिंग अप. The LLP may be wound up either voluntarily or by tribunal to be established under Companies Act. Until the establishment of the tribunal, this power is given to the High Court. Okay? So LLP जो limited liability partnership wound up कर सकते हैं, voluntarily wound up कर सकते हैं, यानी जो कोर्ट की तरफ से जो ट्राइब्यूनल है, बाय द ट्राइब्यूनल टू बी एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट, जो ट्राइब्यूनल है वो कंपनीज एक्ट के तहत है, तो उसकी तरफ से भी वाउंड अप कर सकते हैं. टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल दिस पावर इज गिवन टू द हाई कोर्ट. जब तक ट्राइब्यूनल कंपनी का कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता है, तब तक ये पावर है ना हाई कोर्ट को दिया गया है. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. So the LLP Act confirms power on the central government to apply provisions of the Companies Act as appropriate by notification. Okay? What does it LLP Act क्या confirm करता है? Powers on the central government to apply provision of the Companies Act as appropriate by notification with such charges or modifications as deemed necessary. So, however, such notification must be laid in draft before each house of the parliament for a total period of 3 days and shall be subject to any modification as may be approved by both houses. So, applicability of provision of Companies Act. Now, next point is non-applicability of Partnership Act 1932. The Indian Parliament Act 1932 is not applicable to LLP. Okay, so this act is not applicable. Indian Parliament Act is not applicable. Sorry, in non-applicability of Partnership Act, Indian Partnership Act 1932. सॉरी यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, LLP में अप्लीकेबल नहीं है. जो इसके प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं है LLP. दिस इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये. सेम प्रोविजंस जो इसके डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप के, इसमें एडवांटेजेस दिया गया है. ओके So we have completed this video. What do you mean by Limited Liability Partnership Act? जो कमियां पाई गई थी पार्टनरशिप एक्ट में, उस कमी को पूरा करने के लिए एक नया एक्ट उन्होंने तैयार किया. जो कमिटी है नरेश चंद्र की कमिटी है और जे ईरानी कमिटी है, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट.
और कंपनीज एक्ट में से जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, यानी जो जो पॉजिटिविटी है उसमें से निकाला, और पार्टनरशिप में जो जो डिसएडवांटेजेस है उसको एडवांटेजेस में कन्वर्ट करके एक नया कंसेप्ट बनाया LLP एक्ट. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज LLP एक्ट, व्हाट आर द कंसेप्ट्स, उसके नेचर क्या है, एडवांटेजेस क्या है, salient फीचर्स क्या है. वी हैव कंप्लीटेड today all these things in this video. So in next video we will see what is the difference between LLP and partnership firm. Okay.